Our today's topic is from chapter number 5, that is biochemistry, and the topic is protein. What are the proteins? Proteins are basically the nitrogenous compounds. Nitrogenous compound इनमें नाइट्रोजन भी होती है. They are basically the organic compounds that contains the nitrogen. More than 10,000 amino acids are linked together by the peptide linkage to form the proteins. Basically, proteins are made up of amino acids. Amino acids link together via peptide linkage and they form proteins. Proteins thus consist of carbon, as they are the organic compounds, so carbon, hydrogen, oxygen are the must. And they are nitrogenous organic compound, they also contains the nitrogen. अमाइनो ग्रुप ही आपको इंडिकेट करेगा कि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है. एंड ऑल्सो इट कंटेन्स सम ऑफ द अमाइनो एसिड कंटेन्स द सल्फर, सो सम ऑफ द प्रोटीन्स ऑल्सो डू. नेक्स्ट ऑन हाइड्रोलिसिस, जब हम इसको हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो वाटर लाइसिस ब्रेक डाउन. हाइड्रोलिसिस मीन्स ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. So when we break down the proteins in the presence of water, they give the amino acids, जिससे वो मिलकर बने हैं, जो उनके मोनोमर्स हैं. बेसिकली हम प्रोटीन्स को कहते हैं दे आर द पोलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड. पोलीमर्स डिफरेंट सिंगल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म द पोलीमर. ठीक है, पोली मीन्स मैनी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिट अटैच हैं, और वो सिंगल यूनिट जिनको हम मोनोमर भी कहते हैं, वो हमारे पास क्या हैं, वो अमाइनो एसिड्स हैं. ठीक है, तो जब हम अमाइनो एसिड्स कंबाइन हुए प्रोटीन बना, प्रोटीन को आप ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बन जाएगा, अमाइनो एसिड बन जाएगा. अब ये जो प्रोटीन्स हैं ये कहाँ हैं हमारी बॉडी में? दे आर बेसिकली द नॉन बोनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी. नॉन बोनी पार्ट, आप देखें आपकी स्किन, आपकी हेयर्स, आपके नेल्स, फिर फेदर है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, ये प्रोटीन बना रही हैं. जो हमारा, सॉरी यहाँ पे वुड नहीं है, इट्स वूल. जो वूल एनिमल्स में होती है वो भी क्या है, वो हमारे पास प्रोटीन है. ठीक है, तो जितना भी नॉन बॉडी पार्ट है ये प्रोटीन है. और 50% ड्राई वेट ऑफ द सेल कॉन्स्टिट्यूट्स द प्रोटीन. ठीक है, प्रोटीन्स आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, फाउंड इन egg, dairy, seafood, legumes, meat, nuts and seeds. Regardless of the source, protein we eat is broken down into the new protein that helps to fight infections, illness or disease, and it also helps in cell division. अब प्रोटीन बनी कहाँ से होती है? They are made up of chains of the amino acid that link together by peptide bond, twisted and folded in the protein structure, and when we eat the protein it is broken down into the individual amino acids. Now we move towards the structure of the protein. है क्या क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. ठीक है, ये सब प्रोटीन में है. मेन कार्बन आइटम के साथ अमाइनो ग्रुप अटैच है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है, हाइड्रोजन आइटम अटैच है, और आर इज़ द साइड चेन. एक साइड चेन अटैच है जो कि यूनिक है हर अमाइनो एसिड में. वी हैव 20 अमाइनो एसिड्स और हर अमाइनो एसिड्स में ये साइड चेन डिफरेंट होगी, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो सेम होगा. ठीक है, just because of this R group we have different types of the amino acids like aniline, arginine, asparagine, aspartic acid, cysteine, glutamic acid, glutamine, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, proline, serine, threonine, tryptophan, tyrosine and valine. Now let's move forward to discuss amino acids. What are the amino acids? They are basically the organic compounds that contain amino group and carboxyl acid group as depicted from the word amino acids. Amino means they contains the amino group. Acid means they contains the carboxylic acid group. This is the structure of the amino acid. In the center we have the carbon atom. This is called the alpha carbon. We also called it a chiral carbon. It is the chiral carbon as it is attached to 4 different groups. एक तरफ amino group है,
एक तरफ हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, एक तरफ हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और एक तरफ हमारे पास वेरिएबल साइड चेन है। आर जो है ये साइड चेन है जो कि वेरी करती है। इसी आर ग्रुप की चेंजेस की वजह से वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स। ठीक है, यही आर ग्रुप जो है ये चेंज होता है। ठीक है, किसी अमाइनो एसिड में आर की जगह हाइड्रोजन होगी, किसी में कोई और ग्रुप होगा। ये आर बेसिकली वेरिएबल है जिसकी वजह से वी हैव 20 डिफरेंट काइंड ऑफ द अमाइनो एसिड्स। On the whole we have total 20 amino acids। 20 कैसे बन गए? सिर्फ एक R के डिफरेंस की वजह से। डिफरेंट 20 R ग्रुप्स अटैच होंगे उसी स्ट्रक्चर में, तो वी हैव टोटल डिफरेंट 20 अमाइनो एसिड्स। एंड in the 20 amino acid we divide them as essential amino acids or non-essential amino acids। essential means हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे पास नहीं है, हमारी बॉडी नहीं बना सकती। ठीक है, तो essential amino acid 10 है आउट ऑफ द टोटल 20 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, 20 में से 10 जो अमाइनो एसिड्स हैं दे आर एसेंशियल। एंड they are essential why? Because our body cannot synthesize them। ये हमारी बॉडी नहीं बनाती, लेकिन for the various processes we need these amino acid to constitute the protein, so we have to take these amino acid through our diet। okay, these amino acids can be supplied by diet। now the remaining 10 are non-essential amino acids। non-essential, we don't need them। why we don't need them? Because they can be synthesized by our body, that's why we don't need them through the external diet। अमाइनो एसिड में कार्बन के साथ एक अमाइनो ग्रुप अटैच है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है, फिर हाइड्रोजन अटैच है, और क्या अटैच है? एक साइड चेन। अब ये साइड चेन आर यही डिफर करती है ना, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड है उसमें सिर्फ ये आर में डिफरेंस है। लेट्स सपोज हम सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड लेते हैं जहाँ पे आर की जगह हाइड्रोजन अटैच है। अब दो अमाइनो एसिड वो भी हम सेम ले रहे हैं। ठीक है, आर की जगह हमने हाइड्रोजन अटैच कर दी। ये दोनों आपस में किस तरह रिएक्ट करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप फर्स्ट अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का OH सेकेंड अमाइनो एसिड की अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, H एंड OH वाटर बनाएंगे। डिहाइड्रेशन, वाटर रिमूव हो रहा है ना, D मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, या हम इसे कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और देखें यहाँ पे कार्बन वो बॉन्ड टूटा उसका OH के साथ, और वो कार्बन अटैच हो गया नाइट्रोजन के साथ जाके, जिसके साथ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रही है। इन दोनों स्ट्रक्चर हमने ऐसे लिख देने हैं, इधर से OH रिमूव करना है, उधर से हाइड्रोजन रिमूव करनी है। सो लेट्स समराइज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि हाउ अमाइनो एसिड सर्व एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, और इन केस अगर आपको ये लॉन्ग में आए तो आप प्रोटीन को डिस्क्राइब करोगे, अमाइनो एसिड से डिस्क्राइब करोगे, उसकी टाइप्स बताएंगे और पेप्टाइड फॉर्मेशन बताएंगे। ठीक है, अब क्या है इसमें? वी हैव 2 अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स में वी हैव कायरल कार्बन एज अ सेंट्रल कार्बन एटम टू विच हाइड्रोजन ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड एल्काइल चेन आर अटैच्ड। अच्छा, अब कैसे पेप्टाइड लिंकेज होगा? वी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ 1 अमाइनो एसिड, और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में जो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिएक्ट करता है विद the hydrogen of amino group of second amino acid। hydrogen and hydroxyl they form the water remove हो रहा है, that's why it is called the dehydration। D means removal, hydra means water। ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर रिमूव हो ये dehydration रिएक्शन है, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप of 1 amino acid from the carboxylic acid group and hydrogen atom from another amino acid of the amino group combine to form the water। और ये कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में बना लेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज़ द पेप्टाइड लिंकेज। दिस सॉर्ट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द कंडेंसेशन रिएक्शन, in which 2 molecules combine together with the elimination of the small molecule like water and form a chain। ठीक है, तो इसे हम कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और ये हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज है।
The basic protein structure consists of amino acid that link together via peptide linkage, and the protein has almost more than 10,000 different amino acids. अब इनके सोर्सेस क्या है, इनके यूजेस क्या है, इनके फंक्शन क्या हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं. फंक्शन नंबर 1 इज़ हार्मोन प्रोडक्शन में ये हेल्प आउट करती हैं. हार्मोन्स आर बेसिकली द केमिकल मैसेंजर दैट ट्रैवल थ्रू आउट द बॉडी थ्रू वेरियस कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, और इसमें सेवरल ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं. Second function is build and maintain the tissue. This is why the protein is essential for growing children and athletes. Third function is enzyme production. Enzyme function as the catalyst. They speed up the chemical reaction. They are highly specific in their reaction. और enzymes ऐसा drug भी यूज़ होते हैं bleeding control करने के लिए या blood cancer को treat करने के लिए. Function number 4 transportation. Nutrients को right tissue तक लेकर जाती हैं. Transportation में भी help out करती हैं. फंक्शन नंबर 5 एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी हम इनको यूज़ करते हैं. जैसे प्रोटीन टिश्यू नीड्स को मेंटेन करती हैं, अदर फंक्शंस परफॉर्म करती हैं और एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट इसका यूज़ क्या है? एज एन एंटीबॉडीज़. प्रोटीन फॉर्म्स एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ क्या हैं? जो कि प्रिवेंट करती हैं हमें इलनेस से, डिजीज़ से, किसी भी इन्फेक्शन से. Gelatin is a protein that is made up of animal body parts. It is used in the bakery products, jellies, ice creams. How do we get the gelatin? It is made up of by boiling the skin, tendons, or the bones of the animals like cow, pig, and fish. Next is the animal protein. We can have the animal protein from the meat of the fish, chicken, beef, from the eggs, from dairy. जो भी हमारे पास एनिमल सोर्सेज हैं, इससे जो हमें प्रोटीन मिलती है वो एनिमल प्रोटीन है. एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म इज़ protoplasm constitutes of both cytoplasm and the nucleus. Basically, the protoplasm consists of nucleus, cytoplasm, and also includes the plasma membrane. काम इसका क्या है? बहुत सारे जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं उन सबको ये सपोर्ट करता है. नेक्स्ट, द प्लांट ऑल्सो सिंथेसाइज द प्रोटीन्स लाइक they form from the beans and the pulses we get the proteins. Hides are protein. Hides, हमारे पास जितने भी एनिमल्स हैं हम उनकी जो खाल, हाइड्स क्या होती हैं? दे आर बेसिकली जो उनकी स्किन है, जो खाल है, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ टैनिंग लेदर में कन्वर्ट कर लेते हैं. टैनिंग क्या है? ऐसा प्रोसेस जिससे हम हाइड्स को थ्रू डिफरेंट केमिकल रिएक्शन हम लेदर में कन्वर्ट करते हैं, और लेदर से हमें डिफरेंट लेदर गुड्स मिलते हैं लाइक पर्स हैं, हमारे शूज़ हैं, जैकेट्स हैं, वॉलेट्स हैं, डिफरेंट लेदर गुड्स जो हैं वो हम बनाते हैं.